Good morning, children. Today we'll learn that some solids dissolve in water. That is solids in water. Just see, if I take a glass, I pour water in it, little water, and I add some sugar in it. This is sugar. I add sugar in it. You stir it for some time. So, see, in this liquid, there is no sugar particles now. Means all the sugar particles have disappeared. It means water dissolves sugar in it. Now, if I add mud in it, just see, this is mud, and I am stirring it. Does it get dissolved? No, it will not dissolve. If I keep it for some time, it will settle at the bottom of the glass. So, mud and soil are not soluble in water. Now, liquids in water. Now, liquids in water. You know, if you add milk in water, what will happen? Milk will mix with the water. But if you add oil in water, what will happen? Now, children, if we add milk in it, you know it will dissolve. But if we add oil in it, just see, in this there is oil. If I am adding oil in it, what will happen? It is forming a layer over the water. See, you can see the layer of oil on water. It does not dissolve in water. Layer is formed. You can see droplets of oil over the water. So, we can say that oil is not miscible in water, whereas vinegar, fruit juice, milk, all these are miscible in water. And in the same way, gases. Gases also, like carbon dioxide, oxygen, nitrogen, these gases are mixed in water, whereas many other gases do not mix or do not get dissolved in water. So, children, we can say some solids like sugar, salt, they dissolve in water. Sugar, salt, they dissolve in water and totally disappear. ये पानी में घुल जाते हैं और बिल्कुल फिर दिखाई नहीं देते. लेकिन इसी की जगह पे अगर हम सैंड या मड डालें तो क्या होगा? They will settle at the bottom. वो नीचे बैठ जाएंगे थोड़ी देर के बाद, लेकिन वो वाटर में डिसॉल्व होकर डिसअपियर नहीं होंगे. इसी तरह से पानी में अगर हम मिल्क, विनेगर या फ्रूट जूस इनको हम ऐड करें तो वो पानी में मिक्स हो जाता है ना. वो उनको फिर अलग अलग नहीं कर सकते, दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं. और जब पानी में लिक्विड मिक्स होता है देन वी कॉल इट मिसिबल लिक्विड. सो मिल्क एंड विनेगर आर मिसिबल इन वाटर. ये दोनों पानी में घुल जाते हैं. इसी तरह से अगर हम ऑयल ले लें, ऑयल लाइक केरोसिन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, एनी ऑयल, कोई भी तरह का अगर हम ऑयल पानी में डालें तो क्या होगा? वो पानी के ऊपर फ्लोट करेगा, है ना, और वो एक अलग लेयर बना लेगा. दैट मीन्स ऑयल इज़ नॉट मिसिबल इन वाटर. ऑयल पानी में नहीं घुलता. इसी तरह से गैस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ये
कार्बन डाइऑक्साइड। ये पानी में घुल जाते हैं। आप लोगों को पता है ना कि नदी में, तालाब में फिश रहती है, मछलियाँ रहती हैं और भी अलग तरह तरह की एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं। तो उनको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन कैसे मिलती है? इसी तरीके से, क्योंकि ऑक्सीजन जो है पानी में डिज़ोल्व हुआ रहता है और फिश जो है ढेर सारा पानी पीती है और अपने गिल्स के थ्रू बाहर निकाल देती है और पानी में जो ऑक्सीजन है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इस तरह से उनमें ब्रीदिंग भी होती है और उन्हें वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन मिल जाता है। फिर वो जब एक्सेल करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी पानी में सॉल्युबल है। प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ये प्लांट इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके और अपने लिए फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं एंड दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। सो चिल्ड्रन, दीज I have told you sugar and salt is soluble in water, sand and mud is not soluble in water, milk and vinegar are miscible in water, whereas oil, any type of oil is not miscible in water. Oxygen and carbon dioxide is dissolved in water, whereas other gases do not dissolve in water. Now we come to the next topic, that is expansion and contraction of matter. Children, do you know that whenever we heat anything, either solid or liquid or gas, anything if we heat, the molecules present in it start vibrating. वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं और उनके जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो जगह होती है वो भी थोड़ी सी बढ़ जाती है और इस वजह से सारे मैटर, ऑल मैटर्स एक्सपैंड ऑन हीटिंग. वी कैन से दैट ऑल मैटर्स एक्सपैंड ऑन हीटिंग. द साइज ऑफ मैटर इंक्रीजेस व्हेन वी प्रोवाइड देम heat, and at the same time if you cool down the substance, what will happen? All the matter, either it is solid, liquid or gas, all the matter when cooled they contract. वो जो है छोटे हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, है ना. So all matters contract on cooling, है ना. तो सारे मैटर्स जब हम कूल करते हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स वाइब्रेशन उनमें कम हो जाती है, वो आपस में एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो गैप रहता है वो कम हो जाता है और इसलिए पूरे जो भी मैटर है हम कूल करते हैं तो वो फिर सिकुड़ जाते हैं, छोटे हो जाते हैं. नाउ वी कम टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ फिजिकल एंड केमिकल चेंज. सो चिल्ड्रन, फॉर फिजिकल एंड केमिकल चेंज, physical changes are those changes when there is only change in the shape and size of the matter, but shape, size or state of matter, but their properties do not change. Whereas chemical change is the change in which a totally new substance is formed. मतलब फिजिकल चेंज हम उसे कहते हैं जिसमें कि कोई भी नया चीज़ तो नहीं बनता है, लेकिन शेप, साइज या स्टेट मैटर का चेंज हो जाता है, दैट इज़ फिजिकल चेंज, है ना. जबकि केमिकल चेंज में बिल्कुल ही एक नया सब्सटेंस बनता है या मिल जाता है. जैसे आप लोग देखिए, दिस इज़ पेपर, है ना. इसको हमने ऐसे फोल्ड कर दिया, फोल्ड करके फिर हमने इस तरह से और फोल्ड कर दिया, हाँ, और ऐसे कर दिया और ऐसे करके जैसे आप लोग जो है एरोप्लेन वगैरह बनाते हो, कुछ करते हो ना. सो इट हैज़ गॉट वन शेप, सो द शेप ऑफ पेपर इज चेंज. सो वी कैन चेंज शेप ऑफ पेपर बाय फोल्डिंग, है ना. इट इज़ अ फिजिकल चेंज. अब इसे हम वापस चाहें तो हम फिर पूरा पेज हमें मिल गया. सो हमने अनफोल्ड किया तो पूरा पेज वापस मिल गया और फोल्ड कर दिया तो पेपर का शेप चेंज हो गया. इट इज़ फिजिकल चेंज. इसी तरह से पानी को जब हम फ्रिज में रख देंगे, बर्फ़ बन जाएगा तो वो लिक्विड से सॉलिड हो गया, लेकिन फिर अगर हम बर्फ़ को वापस
बाहर निकाल के रख देंगे तो फिर वो पानी बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मैटर के स्टेट में चेंज हुआ, लिक्विड से सॉलिड एंड सॉलिड टू लिक्विड। इसी तरह से पानी को गर्म करेंगे तो भाप बनेगी और भाप को ठंडा करेंगे तो पानी। तो यहाँ पे पहले क्या हो रहा है, इवेपोरेशन, वाटर को हीट कर रहे हैं तो इवेपोरेशन होके वाटर गैस फॉर्म में चली जा रही है और फिर वापस वेपर को हम जब कूल कर रहे हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जा रही है ना। तो इट इज़ अ फिज़िकल चेंज। लेकिन अब इसी के उल्टा इस पेपर को कुछ फिज़िकल चेंज ऐसे भी होते हैं कि उनको हम वापस बैक नहीं कर सकते। मीन्स अब ये जैसे पेपर का टुकड़ा है, इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़े में ऐसे फाड़ दिया, है ना। अब पेपर तो टुकड़े टुकड़े हो गए। अब इस पेपर को हम सोचें कि ये पूरा एक पेपर बन जाए तो बनेगा क्या? नहीं बनेगा। इट मीन्स इट इज़ फिज़िकल चेंज बट इट इज़ नॉट रिवर्सिबल। इसको हम वापस पेपर फुल पेज नहीं बना सकते, है ना। तो सम फिज़िकल चेंज आर रिवर्सिबल whereas some physical changes are irreversible। अब इसके उलट अब हमने इस पेपर को लिया और माचिस स्लिट किया और यहाँ से चला दिया, ये पेपर जलने लगा। जलने के बाद क्या बना, इसमें तो आग लग गई और जो पेपर हो ब्लैक कलर के एशेस करके नीचे गिर गया, है ना, और बाकी गैस बन के उड़ गया। अब हम चाहें कि वापस उस ऐश को कलेक्ट करके और पेपर में कन्वर्ट कर दें तो ये संभव है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ऐश जो बना है वो बिल्कुल ही एक नया सब्सटेंस है और उसको हम ठंडा करके या कुछ भी करके वापस पेपर में रिटर्न नहीं कर सकते। सो दैट इज़ अ केमिकल चेंज, है ना। तो उसे हम केमिकल चेंज कहते हैं। फिज़िकल चेंज के बहुत सारे, रबर बैंड को स्ट्रेच करते हो, छोड़ देते हो, फिर वो छोटा हो जाता है, अपने साइज़ में आ जाता है ना। स्पंज को दबाते हैं, फिर छोड़ दोगे तो फिर वो अपने साइज़ एंड शेप में आ जाएगा। सो ऑल दीज आर फिज़िकल चेंजेस। और केमिकल चेंजेस वो हैं जिन्हें कि हम वापस नहीं रिटर्न नहीं कर सकते, रिएक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते हैं। जैसे बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर जल गया तो वापस पेपर नहीं बनेगा, है ना। कुकिंग ऑफ फूड, जो खाना पक गया तो वो वापस चावल दाल अलग अलग नहीं होगा, है ना, दैट इज़ केमिकल चेंज। ग्रोथ ऑफ पर्सन, आप छोटे से बड़े हो गए हो तो ये रिवर्सिबल नहीं है, वापस तुम बड़े से छोटा तुम्हें नहीं बनाया जा सकता, इट इज़ केमिकल चेंज। सो ऑल चेंज, वो सारे चेंज जिनको हम बैक नहीं कर सकते हैं या फिर केमिकल चेंज होने के बाद एक टोटल नया सब्सटेंस बन जाता है, दैट इज़ कॉल्ड केमिकल चेंज। ओके चिल्ड्रन, ये चैप्टर इज कंप्लीट नाउ। हैव अ नाइस डे।